everyone, I'm your food guide Nandini Wed. So are you ready to start your 2014 journey into the world of food? आज के एपिसोड में हम देखेंगे एक unconventional सा food destination along with a family food business with a traditional touch and a mouth-watering pastry event. But before that, let's start our show with the story of an urban chef who broke all barriers of traditional cooking in the Spotlight segment. Can you just describe yourself in one word? I don't know, shy, angry most of the time. I don't know. That's it. He's young, he's experimental. He is the group executive chef of Impresario Entertainment and Hospitality Group, which owns Saltwater Cafe, Mumbai. I'm 33. I still consider myself a cook, bawarchi. The chef with the cutting-edge culinary skills. I cook modern European. I cook. I use newer technique. My food is more technique-driven, ingredient-driven than then recipe-driven. Bandra, Mumbai के one of the happening and chic spots को almost single-handedly run करना कोई आसान बात नहीं है. But Gresham, in a short span of time, has shot into limelight with his master skills and lip-smacking food. I love to cook. I don't like being a chef. I don't like being the guy who's barking out orders. I like being the guy cooking the food. So I try and spend most of my time doing that. कोई special childhood memories you can think of? My parents say I was pretty mad. I was pretty naughty. You played on the streets, you climbed up trees, you did all of those things. And I was never... You spend more time outside the house than you spend at home. In school, I was average. I was pretty average in college also. I spent more time on the playing field than in class. And I always wanted to be a DJ. I love music. I still play a lot of music. I never grew up to think that I would work as a chef or a cook for that matter. It was, I grew up with wonderful cooks like my grandmother, my mother, my father, my great-grandmother. Finding happiness in response to his dishes from young and old equally, what inspired Gresham to be a chef? I was always surrounded by good food. I love knives. I collect knives. So yeah, it was a good... I mean, if something that lets you play with knives, then yeah, it's a good job. The most happiest I felt is when a kid, like a 5-year-old kid, like really says this is the best meal he's had, or somebody who's really old and says like this is the best meal that they've had. Kid has no prejudice. He's like, I don't like spicy. It's nothing like that. It's just good food. And an old person is so much of experience. They've eaten so much of food. This was a whole group of really old guys. One of them was around 73 or 74 years old. And we were doing a tasting menu for them. We finished serving them. I just went up to the table, asked him how the meal was. And the old guy was like, he turned around and told me that this was the best meal of his life. A, they are so old. The amount of food that they've eaten, they travel a lot. They've eaten at Michelin star restaurants, and they come home and they say like, this is the best meal that they had. So yeah, it's pretty humbling. For this chef, who considers himself more as a cook than a chef, cookbooks are his Bible and chefs are his masters. For me, Thomas Keller is the #1 chef. After that, it's Farhan Adria, but for a totally different reason. And then you have Chef Rene and Kirsten Blumenthal, so many other guys, man. My favorite restaurant is in India is Indian Accent. I don't plan for the future. I never plan for the future. Come in, work in the kitchen, be with your boys, go to the market, spend time in the market. That's it. He was one of the only 30 people around the world who was selected for culinary residency program with Noma, which is regarded as the best restaurant in the world. It's quite an achievement for a young chef. We wish him all the best for his future. Well, it's time for me to take a quick break. I'll be back in a moment.
Welcome back to the world of food. Themed restaurants की बात करें तो you definitely expect something that is a little different and a bit edgy. तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको न्यू दिल्ली के एक पॉपुलर रेस्टोरेंट पे जिसको देख के आप कहेंगे हाउ बिजार. We are extremely popular for our Kashmiri food. हम आपको क्वालिटी खाना देंगे और क्वालिटी सर्विस देंगे, ये हमारी वादा है. सबके मन में सवाल उठते हैं, ये चोर बाजार नाम क्यों रखा गया है? कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, पर हमारे अगले फूड डेस्टिनेशन के नाम में उसकी यूएसपी छुपी हुई है. चोर बाजार नहीं, ये कोई गली या एरिया का नाम नहीं है, बल्कि दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थीम्ड रेस्टोरेंट्स ऑफ दिल्ली. स्टार्टेड इन मई 1990, इस रेस्टोरेंट को कॉन्सेप्चुलाइज किया यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रोहित खट्टर ने. मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रोहित खट्टर की बड़ी पैशन थी कि एक वो अनरियलिस्टिक रेस्टोरेंट खोले, एक रेस्टोरेंट खोले जैसे वो पहली थीम रेस्टोरेंट ऑफ दिल्ली का. उनकी बड़ी सोच थी कि मैं कुछ बनाऊं हट के. सबके मन में सवाल उठते हैं, ये चोर बाजार नाम क्यों रखा गया? एक्चुअली क्या हुआ ना, मोस्ट ऑफ जितने भी फर्नीचर यहाँ पे, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम हैव बीन हैंडपिक्ड फ्रॉम वेरियस चोर बाजार अक्रॉस द कंट्री. So basically it's just coined the name with a pun on the word bazaar. तभी चोर बाजार बॉर्न हुआ. लेकिन जो चोर बाजार दिल्ली है वो एक्चुअल जो जिसे कहते हैं ना ओरिजिनल चोर बाजार जो है ना यही से बनी है. Lots of research, inputs and efforts के बाद खुला ये रेस्टोरेंट. सिर्फ दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, लवासा एंड मुंबई में ही नहीं, पर लंदन में भी अपनी ऑथेंटिक और इंस्पायर्ड क्विजीन के लिए जाना जाता है. Chor Bazaar, New Delhi has a unique distinction of being the first restaurant in India to be awarded with ISO 9002 grade. इस रेस्टोरेंट ने कई पॉलिटिशियंस एंड फिल्म फ्रेटर्निटी के सेलिब्रिटीज एंड स्पोर्ट्स स्टार्स को सर्व किया है. तो क्या है इस थीम्ड रेस्टोरेंट की यूएसपी, आइए जानते हैं. हमारे रेस्टोरेंट में जो लोग आते हैं वो तकरीबन काफी साउथ दिल्ली से लोग आते हैं, बिजनेस क्लास लोग आते हैं. ट्रैवल एजेंट्स के जरिए हमारे पास काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, काफ़ी हाई कमीशन से लोग आते हैं, काफ़ी एम्बेसडर्स लोग आए हुए हैं हमारे रेस्टोरेंट में. काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी है. हम इसकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, खाने की जो क्वालिटी है, इसको हम ज़रूर मेंटेन करते हैं और हम एवरी डे टू डे बेसिस में हम इसको चेक करते हैं. वेदर हमारे शेफ़ है, शेफ़ प्रदीप खुल्लर, या मैं हूँ, मैं खुद जाते हैं, हम खुद जाके किचन में खाना चखते हैं. हर एक को एक फीडबैक फॉर्म दिया जाता है और उस फीडबैक के ऊपर हम नज़रअंदाज नहीं करते. ये रेस्टोरेंट इज़ फॉर द मासेस, इज़ फॉर द पब्लिक एंड वी अकॉर्डिंगली एक्ट एंड उस रेस्टोरेंट को उसी तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं इतनी सालों से. खुद ही को अपने बिगेस्ट कंपेटिटर मानने वाले मिस्टर सिन्हा का ये भी मानना है कि उनकी नॉवेल्टी, पर्सनलाइज्ड सर्विस और क्वालिटी ऑफ फूड को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता. पर उनके कश्मीरी क्विजीन का मार्केट में कोई मुकाबला नहीं है, जिसके लिए उन्होंने खास कश्मीर की अनचार्टेड टेरिटरी से शेफ्स को खोजकर अपने रेस्टोरेंट में हायर किया हुआ है. रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल करने के लिए हम 2-3 चीजें बड़ी अहम रखते हैं. एक तो सर्विस, काफी पर्सनलाइज सर्विस देते हैं. खाने की क्वालिटी बड़ी हमारी मतलब डे टू डे बेसिस में खाने की क्वालिटी हम चेक करते हैं. कश्मीरी फूड, हमारे इस टक्कर का फूड शायद दिल्ली में नहीं है. ठीक है, हमने ओरिजिनल शेफ मंगवाए हैं. वो शेफ कहाँ से आए? एकदम दूर दूर मतलब कश्मीर के दूर दूर गाँव से आए हुए हैं. जिसको ऑथेंटिक कश्मीरी खाने की नॉलेज है उसे हम शेफ बना के रखे हुए. हमारा कंपटीटर कोई नहीं है, हम खुद ही अपने साथ कम्पीट करते हैं. यहाँ की हर एक चीज अपने यूनिकनेस की कहानी बताती है, चाहे वो विंटेज कार हो या सोइंग मशीन या फिर 4 पोस्ट बेड. एक हॉलीवुड कॉर्नर भी इस रेस्टोरेंट में आपको दिखाई देगा जो हॉलीवुड मूवीज और स्टार्स से इंस्पायर्ड है. अब अगर आप देखो ना, मोस्ट जितने भी फर्नीचर है वो अलग है, हटके. हर एक एरिया, हर कोना अलग अलग है. तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमने बड़ी सोच समझ के, मिस्टर खट्टर ने बड़ी सोच समझ के इसको सारा इकट्ठा करा, सब चीज को अपनी जगह बिठाया और ये 20 साल से यही चल रहा है. कौन सा रेस्टोरेंट में आप देखेंगे 1927 मॉडल की एक फिएट गाड़ी, लेकिन हम इस फिएट कार को ऐसा नहीं लगा के रखे. उसमें हमने इनोवेशन क्या किया, हमने इसमें सैलड लगा दिया, इसमें एक चाट लगा दिया. Situated right between old and new Delhi, Chor Bazaar may be a tad expensive, but यहाँ के डेकोर और फूड की मेमोरीज आपको हमेशा ही याद रहेगी. तो हम कह रहे हैं कि पुरानी दिल्ली की चाट यही खाओ, आपको पुरानी दिल्ली इतनी दूर ट्रैफिक जाम में जाने की जरूरत ही नहीं है. तो हमने इसको इनोवेटिवली बना दिया चाट मोबाइल.
और ये चल रहा है, बहुत बेखूबी से चल रहा है, बहुत अच्छी है, लोग इसको पसंद भी करते हैं। एक बार आप रेस्टोरेंट में घुस जाएंगे तो आपका जो ये मेमोरीज है वो जो आप साथ लेके जाएंगे, आप जरूर इसको याद करेंगे और बार बार आने की कोशिश करेंगे। We are extremely popular for our Kashmiri food. Though we serve our food cuisine right from Kashmir till Kanyakumari, but there's a very elaborate Kashmiri thing which we serve out here. कश्मीरी को खाने के दो तरीके हैं, या तो आप उसको वाजवान की तरह खाइए या आप उसको अला काट की तरह लीजिए। एंड वी ऑल्सो ऑलवेज स्ट्राइव एंड ऑलवेज कीप वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द टेस्ट ऑफ आवर डिशेस। चोर बाजार लोकेटेड है दिल्ली में। यहाँ की टाइमिंग्स हैं 12:30 PM to 11 PM। ओवरऑल हम इस जगह को देंगे फूड के लिए 4 on 5, एम्बियंस के लिए 4.5 on 5 और सर्विस के लिए 4 on 5। Interestingly, Chor Bazaar has a lot to offer. This is a place that you shouldn't miss out on. इंडिया में ट्रेडिशंस को काफी अहमियत दी जाती है, चाहे वो हो इन द मैटर्स ऑफ ड्रेसिंग अप और इन द मैटर्स ऑफ फूड। चलिए आपको एक ऐसी जगह लेके चलते हैं जहां पर फूड ट्रेडिशंस को काफी पैशनेटली फॉलो किया जाता है। हैव अ लुक। हम स्वाद ऐसा देते हैं कि जो और कोई नहीं दे पाता। नाथूज इज द बेस्ट। नथूस की शुरुआत 1939 में मिस्टर लाला नथुराम गुप्ता जी ने की और इसकी लेगेसी को उनके तीनों बच्चों ने और उनके ग्रैंडसन्स ने मिलकर आगे बढ़ाया। दादाजी के 3 बच्चे जो हैं उन्होंने उनके साथ साथ इस काम को आगे बढ़ाया और उसके बाद दिल्ली के बाद और भी जगह हमारा जो मिठाई और नमकीन वगैरह जो हम बनाते थे वो सब जगह जानी शुरू हुई और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। दिल्ली में से 1939 से लेके आज तक नाथूस की मिठाई देश विदेश में खूब लोग चाहते हैं, उसको पसंद करते हैं, खाते हैं। आज इस लेगेसी को सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश विदेश में लोगों ने खूब सराहा है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इस फैमिली ने सिर्फ स्ट्रगल ही नहीं किया बल्कि अपनी रेसिपीज में नए वेरिएशंस लाकर अपने नाम और पोजीशन को मेंटेन किया है। देश विदेश में सब जगह आज नाथूस एक लैंडमार्क, अपने आप में एक लैंडमार्क है। वो जो हमारे बड़े लोगों ने जो मेहनत की और जो वो रेसिपी सेट करी, जो वो टेस्ट डेवलप किया बड़े लोगों ने, उसके साथ साथ आज भी हम लोग दिन प्रतिदिन जो नए से नई रेसिपीज इंट्रोड्यूस करते हैं, लोगों को नए से नया टेस्ट देते हैं, उसकी वजह से ये लैंडमार्क बना। तो क्या है इस स्वीट शॉप कम फूड जॉइंट की USP, आइए जानते हैं। मिठाई के साथ नमकीन है हमारा और रेस्टोरेंट है, जैसे हमारे छोले भटूरे हैं, गोलगप्पा, पापड़ी चाट जो है, जो भी कोई इंडिया के बाहर से भी आता है, दिल्ली वासी और जितने भी भारतवासी लोग हैं, इसको बहुत शौक से खाते हैं। हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम खुद अपने आप से चेक करके करते हैं, इस काम में मेहनत बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स की रेसिपीज़ को मेंटेन करने के लिए। मसाले भी हम अपने रेस्टोरेंट में यूज़ करते हैं, वो हम नियमित तौर से उसको पीसते हैं खड़े मसाले को लेके, ताकि उसका जो फ्लेवर है वो एक अच्छे से फ्लेवर आए। पर नथू सिर्फ अपने नमकीन चाट और स्वीट्स के लिए ही नहीं बल्कि एक और रीजन की वजह से भी काफी फेमस है। रिसेंटली जब सचिन जी ने अपना 200वां टेस्ट खेला तो हमने उनको एक गिफ्ट के लिए हमने उनको एक 200 किलो का लड्डू बनाया, जो कि पूरे विश्व में वो ऐसे फैला कि नाथू सुंदरनगर ने इतना बड़ा लड्डू बनाया और जितने भी हमारे जो ग्राहक लोग थे वो सब लोग यहाँ पर आए और उन्होंने उसको चखा और बहुत तारीफ करी। तो वो मोमेंट एक ऐसा है जो सालों तक याद रहेगा। हमारे जो कस्टमर हैं जो 1939 से लेके पहले दादाजी आते थे, अब पोते आते हैं और वो वही स्वाद कहते हैं कि वो हमारे दादाजी तारीफ़ करते थे, अब बच्चे लोग तारीफ़ करते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा स्वाद पहले भी मिलता था वो आज भी मिलता है। इतने अच्छे सेलिब्रिटीज़ जो हमारे यहाँ रेगुलर आते हैं, सिंगर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, प्लेयर्स भी हैं, अगर वो लोग पसंद कर रहे हैं तो इसलिए लगता नहीं कि कोई कंपटीशन है, क्योंकि हम स्वाद ऐसा देते हैं कि जो और कोई नहीं दे पाता। न्यू दिल्ली का लैंडमार्क नथू स्वीट्स लोकेटेड है 2 मेन मार्केट सुंदर नगर नियर ओबरॉय मॉल न्यू दिल्ली में। यहाँ आपको मिलेगी नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज,
फास्ट फूड और डिजर्ट्स की इमेंसली टेस्टफुल वैरायटी, वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में। अकॉर्डिंग टू अस, दिस प्लेस इज अ 4 on 5 on food, 3 on 5 in ambience and 3.5 on 5 on service. अपने ट्रेडिशंस को ना छोड़ के और अपने मेन्यू को ट्रेंडी बना के गुप्ता फैमिली ने अपने पैशन को बिल्कुल ओवरलुक नहीं किया। That's why they've remained so popular in such a competitive market. Well, it's time for me to take a quick break. I'll be right back. वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ फूड। केक्स एंड पेस्ट्रीज जितने खाने में मजेदार होते हैं उतने ही बनाने में टीडियस। चलिए आपको एक ऐसे इवेंट पर लेके चलते हैं जहां पर एक टॉप नॉच शेफ ने एक बहुत ही डिफिकल्ट डिश को बहुत ही सिंपल वे में बनाया। Without wasting any further time, I'll let Chef Javed Merchant take over the stage. It was nice. It was amazing. It's awesome stuff. Recently, डेली न्यूज़पेपर DNA ने अपने रीडर्स के लिए जुहू मुंबई के प्लश नोवोटेल होटल के साथ मिलकर एक वन ऑफ अ काइंड इवेंट रखा जिसका नाम था केक वॉक। इस इवेंट में नोवोटेल के पेस्ट्री शेफ जावेद मर्चेंट और एग्जीक्यूटिव शेफ रणवीर बरार ने इजी टू मेक एंड इजियर टू बेक की थीम को बड़ी ही बखूबी से एग्जीक्यूट किया। ये मेरा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इतनी बड़ी पैमाने पे वर्कशॉप है। जिस तरीके से गेस्ट के साथ में जो इंटरेक्शन वगैरह हो रहा था, रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। लोगों की रिक्वायरमेंट बड़ी बेसिक होती है, यू नो, सो forums like this allow us to interact and kind of get back to the basics and understand what our customer wants. कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमारे दिमाग में नहीं होती, बट हम करते जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन जब क्वेश्चंस अराइज होते हैं तो हमको रियलाइज होता है अरे हमने तो ये सब चीज़ों पे हमने ध्यान नहीं दिया। जब सामने ऑडियंस है तो एक चीज़ की जो बारीकी है वो ऑडियंस को समझाने में किसी भी समय कोई भी सवाल आ सकता है। द लेवल ऑफ अवेयरनेस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। जो क्राउड था they made me more comfortable, you know, to take the class forward. I could relate to the crowd और उनके questions answers वगैरह जो कुछ भी उनको, तो it was a good learning. इवेंट में आए थे टेलीविजन स्टार्स नकुल मेहता और हुनर अली। शेफ्स के डेमोन्स्ट्रेशन को देखकर वो भी काफी इम्प्रेस हो गए थे। It's awesome stuff. We Indians love eating, and it sounds very beautiful that you need some French entree, you said, right? सुनने में इतना इंटरेस्टिंग लगता है, खाने में जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। I am gonna rate it 10 on 10, man. मुझे तो कहा गया था बहुत सारी केक्स और पेस्ट्रीज होगी, इसलिए मैं आया हूँ। आइए जानते हैं कि पार्टिसिपेंट्स की इस एक्सपीरियंस के बारे में क्या राय थी। It was a very nice workshop, very enlightening one. Completely amazing, different from what I have been attending till now. This is for the first time I'm attending and viewing a French entree, and it's marvelous. It was really, really friendly workshop. Like a chef making steps so simple, it's unbelievable. It was nice being aware. In addition to teaching the very good cake, he's given us a lot of tips, which normally we don't know. So it was very good for me coming over here. It was really, really friendly workshop. The chef is so excellent, so talented. His explanations, the procedures were very easy. Participants के reviews और cakes and pastries के lip smacking recipes और demonstration को देखकर तो यही लग रहा था कि this event was overall a cake walk for one and all. कुछ हद तक हमारे लिए भी रिफ्रेशिंग होता है। We want to interact, we want to be out there, we want to be in touch with our consumer. We'd love to do more focus groups like this. Well, that's it for today's episode. I'll be back next week with more food trends and food stories. You do keep writing into us at wof@znetwork.com and also follow us on Facebook. Until then, this is Nandini taking your leave from the world of food. Angry most of the time.
We are extremely popular for our Kashmiri food. हम आपको क्वालिटी खाना देंगे और क्वालिटी सर्विस देंगे, ये हमारी वादा है। सबके मन में सवाल उठते हैं, चोर बाजार नाम क्यों रखा गया? हम स्वाद ऐसा देते हैं कि जो और कोई नहीं दे पाता। Nathuz is the best. Without wasting any further time, I'll let Chef Javed Merchant take over the stage. It's awesome stuff.